Okay, so blood relations is again a very I won't say difficult, but it is a familiar topic, right? Right, because you all have blood relations, with your family, so you know a thing or two about blood relations, correct? This is not a completely strange topic. This is not a completely unknown topic. You already know how it works. You already know the nomenclature. You already know how are you related with your father and how you related with your son. You know those kind of relations. But yes, what you might not have seen is the kind of questions that are asked, right? So the questions could be a little difficult. The question could be a little complicated, and that is what you have to learn. Okay. So before getting into the questions, let us first discuss the kind of relations that we will be exposed to. Okay. So let's say in a family there is a father and a mother. Okay. So let's say this is father and this is mother. Okay. This is father and this is mother. Now I've used the symbol of plus to denote that they are a couple, right? So we'll be using plus to denote a couple. And one more thing, let us do one thing just to avoid complication and just to introduce simplicity. Let us use small letters for all the male characters and capital letters for all the female characters. Okay, why? Because simplicity. We want to understand how to draw a simpler diagram or a simpler family tree. So let's say this is father, small f, and this is mother, capital M. So if I use a small letter, it should simply tell you that this is a male character. If I use a capital letter, it should tell you that it is a female character. If gender is unknown, let's say we don't know it is male or female, and by the way, let me just clarify that for the point of aptitude, we have seen that the questions only use two genders. Although we know that in India there are three genders, that is male, female, and the third gender. But in terms of aptitude, we have seen that the questions, they don't go into the third gender. The questions are only of male and female. So what I'm going to teach you is not a question of discrimination, but it is a question of the history, that what kind of questions have been asked till now. So if I do not use the third gender anywhere, please understand that the questions are not of the third gender. So this is just a disclaimer from my side that we will only be talking about two genders, male and female. Why? Because till now questions have covered only these two. We don't know if from the next CAT paper onwards or from the next season onwards, questions could involve three genders. We don't know that. So as of now, we will follow what has been asked till now. Okay. So small is male, capital is female. When the gender is unknown, you can use like this, let's say capital slash small, so that you could know that we as of now do not know the gender of this particular character. Okay. So coming back to the family tree, so we have a father, we have a mother. Okay. Let's say we have a son, right? Also, let's say we have a daughter. Again, writing in capital letter, writing son in the small letter. Okay. Now let's say the father has set of parents whom we call grandparents, right? So we have grandfather plus grandmother. Okay. Let us try to understand and let us try to establish few relationships from this. Okay. Tell me, how is this person related to this person? क्या आएगा आंसर? So, question: how is this person related to this person? So I will be asking question in this format: how is A related to B? Okay, this will be the format of the question. How is A related to B? Now my question is that who is the subject of this question? Who is the subject, A or B? Think about it. Who is the subject of this question, A or B? किसका identity हम पूछ रहे हैं? So we are asking the identity of A with respect to B. So A is the subject. Please understand.
ए बी का क्या लगता है या ए बी की क्या लगती है, ये आपको पूछना है. When I ask how is this person related to this person, so subject is this person, and the answer is daughter, right? The answer is daughter. Okay. Now let's say again asking a different question. Let's say tell me how is this person related to this person? How is this person related to this person? क्या आएगा आंसर? Son. है ना? Yes, this person is the son of this person. Okay. Okay. Let's say if I ask if this person has a sister, this person has a sister. If this person has a sister, okay, and then I ask how is this person related to this person? फिर से how is this person related to this person? What will be the answer? The answer is daughter. है ना, ये पर्सन इसकी डॉटर हुई ना, बिकॉज ये पेरेंट्स है और ये भाई बहन है, करेक्ट? ओके. नाउ टेल मी हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू दिस पर्सन? हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू दिस पर्सन? क्या आएगा आंसर? क्या अभी आंसर डॉटर आएगा? नो. इंडियन टेलीविजन हैव टॉट अस दैट बहु बेटी नहीं होती है ना. इंडियन टेलीविजन हैज टॉट अस दैट बहु बेटी नहीं होती. सो दिस इज नॉट डॉटर, दिस इज नॉट बेटी, दिस इज डॉटर इन लॉ. दिस इज डॉटर इन लॉ. आजकल नया फैशन है डॉटर इन लॉ को DIL लिखने का या फिर मदर इन लॉ को MIL लिखने का. सो DIL इज द आंसर, डॉटर इन लॉ, नॉट बेटी. सो इंडियन टेलीविजन हैज टॉट अस दैट बहु बेटी नहीं होती है ना, जस्ट being sarcastic. But yes, they have also taught us that bahu किसी ना किसी की बेटी जरूर होती है. So the bahu also has a set of parents. The bahu also has a set of parents, है ना? So for example, if I ask how is this person related to this person, ये इनके क्या है? दामाद जी हैं. ये दामाद है, सन इन लॉ है ना, सन इन लॉ. ओके. लेट्स से दिस मदर इन द फैमिली हैज अ ब्रदर. दिस मदर इन द फैमिली हैज अ ब्रदर. ओके. नाउ हाउ इज दिस पर्सन, प्लीज नोट इट, हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू दिस पर्सन? हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू दिस पर्सन? इंग्लिश में बोले तो अंकल और हिंदी में बोले तो मामा. बट गुड फॉर अस, हमें हिंदी में आंसर नहीं देना है. इंग्लिश में जरूरी नहीं है कि आप अंकल को स्पेसिफाई करो कि भाई पैटर्नल है मैटर्नल है. हाँ, अगर ऑप्शन में है तो करना पड़ेगा. सो दिस इज पैटर्नल अंकल या फिर मामा, दिस पर्सन, है ना. ओके. I hope you are able to understand these relationships. चलो कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. Let us say that this son got a wife. This son got married, got a wife. This daughter also got married and got a husband. दोनों की शादी हो चुकी. Okay. Now these guys, they have a daughter and these guys, they have a son. Okay. Chalo, my first question. How is this person related to this person? How is this person related to this person? Think about it. Think about it. ये इसकी क्या लगती है? So these are ब्रदर सिस्टर. ये सिस्टर है. ब्रदर की बेटी, ब्रदर की डॉटर कौन होती है? ब्रदर की डॉटर इज नीस. सो हाउ इज ये कौन हुई? दिस इज आंट. आंसर क्या आएगा? आंट. कौन सी आंट? पैटर्नल आंट. कौन सी आंट? पैटर्नल आंट, है ना. ओके, वन मोर.
टेल मी हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू दिस पर्सन. ओके, जो सब्जेक्ट है उसको एक काम करते हैं, जो सब्जेक्ट मैं आपको दे रहा हूं उसको मैं स्क्वायर करता हूं. लेट्स से हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू दिस पर्सन. सब्जेक्ट को मैं स्क्वायर करता हूं. ओके, तो आपको समझ में आने लगेगा. हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू दिस पर्सन. व्हाट इज द आंसर? थिंक अबाउट इट. थिंक अबाउट इट. अपने फैमिली में रखने की कोशिश कीजिए. हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू दिस पर्सन. द आंसर इज कजिन, और टू बी स्पेसिफिक कजिन ब्रदर, है ना. द आंसर इज कजिन ब्रदर. ये कजिन ब्रदर है इसका. ओके, ठीक है. Okay, one more. How is this person related to this person? Square is the subject. Think about it. How is this person related to this person? And once again, अगर आपने इंडियन टेलीविजन देखा है, the answer is दुश्मन. The answer is दुश्मन. ये पर्सन इसकी कौन हुई? अंग्रेजी में बोले तो सिस्टर इन लॉ, और अगर हिंदी में बोले तो ननंद. कोई भी सीरियल उठा के देख लो, ननंद का कैरेक्टर बुरा ही होता है. as simple as that. ननंद का कैरेक्टर बुरा, कोई भी सीरियल, गारंटी. आंसर इज सिस्टर इन लॉ. करेक्ट, ठीक है. और सीखते हैं. Okay. Tell me, how is this person related to this person? Oh, मैंने स्क्वायर कर लिया. Let me, yeah, this person. How is this person related to this person? Think about it. सब्जेक्ट को मैंने स्क्वायर किया है और रिलेशन को मैंने सर्कल किया हुआ है. हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू दिस पर्सन. थिंक अबाउट इट. ये एक लेडी है, उनकी डॉटर, उनका सन. एक लेडी है, उनकी डॉटर, उनका सन. सो ये कौन हुआ? ऑब्वियसली आंसर इज ग्रैंडसन. अगर मैंने उल्टा पूछा होता तो ये कौन है ऐसा पूछा होता तो क्या आंसर आता? ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर, है ना. ओके, ओके, चलो. टेल मी, हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू दिस पर्सन. हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू दिस पर्सन. द आंसर इज कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, है ना. कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते. सो यस, देयर इज नो डिफाइंड रिलेशनशिप ऑफ दीज पीपल. दे ओनली इंटरैक्ट कंप्लीटली वंस. कब? वेडिंग में. उसके बाद फिर ऑकवर्ड होता है रिलेशनशिप, राइट. सो not necessary that every relationship will have a name, right? ठीक है. हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इन-लॉज हैं, ये बोल सकते हैं, but then there is no defined relationship. Correct? So let me ask one more thing. How is this person is related to this person? How is this person related to this person? ये कौन हुआ ये पूछा है. सब्जेक्ट इज दिस सन एंड रिलेशन ये है, ये इंसान जो ब्रदर है. सो आंसर इज नेफ्यू. नेफ्यू, है ना. और अगर आप हिंदी में ये मैटर करता है कि नेफ्यू किस तरफ से है. अगर नेफ्यू अपने बहन की तरफ है तो उसको हम भांजा बोलते हैं. अगर भाई की तरफ है तो उसको हम भतीजा बोलते हैं, है ना. इंग्लिश में ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता. इंग्लिश में ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता. नेफ्यू दोनों जगह से नेफ्यू ही बोलते हैं, है ना. सो ये इंसान कौन हुआ? नेफ्यू हुआ. ये इंसान इसका नेफ्यू हुआ. सिमिलरली ये इंसान कौन हुआ? मामा, अंकल, है ना. ओके, वन मोर थिंग. ओके, टेल मी, हाउ इज दिस पर्सन related to this person. How is this person related to this person? How is this person related to this person?
सोचिए, ये एक लेडी है, ये उनका भाई है और ये भाई की बेटी है। भाई की बेटी को क्या बोलेंगे? भतीजी या फिर नीस। नीस, करेक्ट? सो दिस पर्सन इज नीस ऑफ दिस पर्सन। सो ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, राइट? ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। कजिन, इन लॉज, ब्रदर सिस्टर, अंकल आंटी, ये, राइट? आई होप ये फैमिली ट्री और ये जो हमने थोड़ा सा एक क्वेश्चन का एक सीरीज किया, इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आया होगा कि रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हैं, कौन सब्जेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप है और उसके हिसाब से कैसे हम आंसर करते हैं, राइट? सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। ओके, चलिए इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आई होप चीजें क्लियर हैं। लेट अस मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन ब्लड रिलेशन। So first type of questions are chain relations. Chain relations. Chain relation के क्वेश्चन में क्या होता है? चेन रिलेशन, आप चेन तो समझते हैं। चेन में कैसे एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई होती है, फिर उससे तीसरी कड़ी जुड़ी हुई होती है, फिर चौथी कड़ी, ऐसे। तो चेन रिलेशन के क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारे रिलेशनशिप दिए होंगे। एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारे रिलेशनशिप। मेरे भाई की बेटी के हस्बैंड के पापा की बहन के पड़ोसी की नानी, वैसे वैसे वैसे, है ना? एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारे रिलेशनशिप दे दिए हैं और फिर पूछा होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का रिलेशनशिप कैसा होगा या फिर कैसे रिलेटेड है। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, चेन रिलेशन का एग्जांपल। लेट मी गो टू क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पॉइंटिंग टू अ मैन, अक्षय सेड दैट दिस मैन इज द ओनली सन ऑफ माय सिस्टर्स फादर इन लॉ। This man is the only son of my sister's father. एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें, एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें। How is that man related to अक्षय? Let us try to think. ये अक्षय है, okay? अक्षय ने बोला this man is the only son of my sister's father-in-law. तो देखो लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करो, माई सिस्टर्स फादर इन लॉ। हमेशा चेन रिलेशन के क्वेश्चन में लास्ट से शुरू करो, लास्ट पार्ट से। अक्षय की सिस्टर, तो ये सिस्टर के बीच में हॉरिजॉन्टल एरो, ब्रदर सिस्टर के बीच में हॉरिजॉन्टल एरो। सो अक्षय और ये उसकी सिस्टर, लेट्स से उसका नाम है XYZ, हमें नहीं मालूम, ये उसकी सिस्टर है और अक्षय मैन है तो मुझे उसका नाम स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए। सो अक्षय, यस। तो अक्षय, उसकी सिस्टर XYZ, उसका हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड मतलब अक्षय का कौन? जीजू, ब्रदर इन लॉ, जीजा जी। ओके, उनके पिताजी, माय सिस्टर्स फादर इन लॉ, सिस्टर के फादर इन लॉ मतलब इस हस्बैंड के पिताजी, सो फादर। ओके, अब वापस चलते हैं। माय सिस्टर्स फादर इन लॉ मतलब ये इंसान, ओके? सो दिस मैन इज द ओनली सन ऑफ दिस मैन, इसका अकेला एक इकलौता बेटा। ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये इंसान जो है ना, ये वाला इंसान, इसका एक ही बेटा है। कौन दिख रहा है आपको फिगर में? उसका एक इकलौता बेटा, तो हमें ये हस्बैंड ही दिख रहा है। इसका मतलब अक्षय किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? अक्षय इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिज ब्रदर इन लॉ। अक्षय इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिज ब्रदर इन लॉ। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, ब्रदर इन लॉ। आप चेक कर लीजिए, अक्षय बोल रहा है कि दिस मैन इज द ओनली सन ऑफ माई सिस्टर्स फादर इन लॉ, मेरे दीदी के, अगर शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो मेरे दीदी के ससुर जी के इकलौते बेटे मेरे जीजा जी हुए ना, राइट? सो माई सिस्टर्स फादर इन लॉज ओनली सन इज माई ब्रदर इन लॉ। माई सिस्टर्स फादर इन लॉज ओनली सन इज माई ब्रदर इन लॉ। सो पॉइंटिंग के क्वेश्चंस या फिर चेन रिलेशन के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? लास्ट से शुरू करोगे और ऐसे डायग्राम बनाकर एक रिलेशनशिप डिफाइन करने की कोशिश करोगे, है ना? रूल्स क्या है हमारे कॉमन? व्हाट आर द कॉमन रूल्स? सो हमने देखा कि स्मॉल लेटर या स्मॉल लेटर मेल, कैपिटल लेटर फीमेल, अननोन है तो ये, कपल है तो
कपल है तो क्या करेंगे, लेट्स से ए प्लस कैपिटल बी। स्मॉल ए इसका मतलब ए हस्बैंड है, फीमेल है मतलब बी वाइफ है। और अगर सिबलिंग है तो क्या करेंगे, लेट्स से ए एरो बी, तो ए इज द ब्रदर, बी इज द सिस्टर। लेट्स से पेरेंट है तो क्या करेंगे, लेट्स से ए स्मॉल नीचे कैपिटल बी, इसका मतलब ए इज द फादर, बी इज द डॉटर। स्मॉल लेटर है तो मेल, कैपिटल लेटर है तो फीमेल। ये एक अपना कोडिंग हम लोग फॉलो करेंगे इस पूरे चैप्टर में, है ना। सो हमने पहला क्वेश्चन देखा चेन रिलेशन का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन द फोटोग्राफ, एक वुमन की तरफ फोटोग्राफ में पॉइंट किया जा रहा है। ये क्वेश्चन मैं करूंगा और इसके बाद से क्वेश्चन में मैं आपको पार्टिसिपेट करना दूंगा। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है तो पॉज कीजिए या पहले अपने से ट्राई कीजिए, उसके बाद ही रिज्यूम करना। बट फॉर दोज ऑफ यू जो जिनका कंफर्ट नहीं है ज्यादा ब्लड रिलेशन में, आई वुड विश कि आप मेरे साथ पहले इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करें, बाद में मैं आपको पहले मौका दूंगा। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन द फोटोग्राफ मतलब वुमन की तरफ पॉइंट किया जा रहा है। दीप्ति सेड, दीप्ति ने बोला है, दीप्ति, तो दीप्ति तो फीमेल है, सो दीप्ति को मैं डी लिख रहा हूं, कैपिटल डी। दैट शी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ब्रदर इन लॉज फादर्स सिस्टर, ब्रदर इन लॉज फादर्स सिस्टर। ओके, दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले मेहनत करके, दूसरा दिमाग लगा के। पहले मेहनत कर लेते हैं, हार्ड वर्क। चलो, दीप्ति, शी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ब्रदर इन लॉज फादर सिस्टर। पहले यहां आते हैं, ब्रदर इन लॉज फादर सिस्टर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शांति से सोचिए। दीप्ति के ब्रदर इन लॉ दो तरीके से हो सकते हैं। एक, दीप्ति के ब्रदर इन लॉ दो तरीके से हो सकते हैं, एक दीप्ति के जीजाजी या फिर दीप्ति का देवर, दोनों हो सकता है। ओके, सो अगर ये दीप्ति के ब्रदर इन लॉ है, लेट्स से एक यहां पर ड्रॉ करते हैं, ये दीप्ति, ये उसके हस्बैंड और हस्बैंड के ब्रदर, तो हो गए दीप्ति के ब्रदर इन लॉ। सो दीप्ति के ब्रदर इन लॉस फादर मतलब ऑब्वियसली इनके दोनों के पिताजी, उनकी सिस्टर, फादर की सिस्टर, and that woman Dipti said that she is the only child of this lady, इनकी only child। तो यहां पर एक उनकी डॉटर है, तो और ये वुमन है, वो लेडी है, लेडी इन क्वेश्चन। दीप्ति इनको देख के बोल रही है। अब देखो बहुत लंबा सा ये डायग्राम है। ओके, हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू दीप्ति? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में एक है कजिन, मदर, डॉटर। कजिन तो ये है नहीं बिकॉज ये इन लॉ के ससुराल में है, ये ससुराल में कजिन्स नहीं होते, तो कजिन तो है नहीं। मदर भी नहीं है बिकॉज मदर भी ससुराल में नहीं होती। डॉटर भी नहीं है बिकॉज डॉटर भी ससुराल में नहीं होती। ससुराल में जो भी हो, ससुराल में जो भी हो, इफ यू आर अ गर्ल तो आपके ससुराल में आपके हस्बैंड के अलावा सब इन लॉज होंगे। इफ यू आर अ बॉय तो आपके ससुराल में आपकी वाइफ के अलावा सब इन लॉज होंगे। इसका मतलब है कि ये हस्बैंड या वाइफ तो है नहीं, तो ऑब्वियसली ये समथिंग इन लॉ होगी। समथिंग इन लॉ होगी, और इन लॉ वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। दैट्स इट, खत्म। सी इज द आंसर। सो हमने स्मार्ट वर्क से इसको सॉल्व किया। हार्ड वर्क से कर सकते हो डेफिनेटली, ग्राफ ड्रॉ करो। स्मार्ट वर्क से बस इतना सोचना है कि यार ये तो इन लॉ है, इन लॉ तो होनी चाहिए ना। अगर मेरे हस्बैंड के या मेरे वाइफ के फैमिली में है तो ये इन लॉ होगी। सो इन लॉ का एक ही ऑप्शन था, दैट इज ऑप्शन सी, राइट। सो दिस इज चेन रिलेशन के कुछ एग्जांपल्स, है ना। ऑलराइट, सो वी हैव सीन क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is on the screen. Pointing to a man in the photograph, Om said, that is my daughter's father's only brother. How is Om related to the man? Cousin, son, father, or brother? Right? So that's an easy question right there from the chain relations. So I would ask you to take about 1.5 minutes max, solve it, and resume the video. Okay, so I hope by now you have finished this question. It was a very simple one. So what
what is given? Pointing to a man in the photograph, Om said. So Om is the subject of this question, right? Let me just quickly change the color. Okay, so Om is the subject of this statement. So Om says, that is my daughter's father's only brother. Daughter's father's only brother. So let's start from the last part. Last part says brother, but किसका brother? Father's only brother. Father's only brother कौन होता है? Father's only brother is nothing but uncle. Father's only brother is nothing but paternal uncle, right? Okay. That is my daughter's paternal uncle. Om is saying, that is my daughter's paternal uncle. My daughter's paternal uncle. My daughter's paternal uncle मतलब क्या? My brother, right? So for example, this is Om. This is Om's daughter. Om's daughter's paternal uncle कौन होगा? Om का ही brother होगा, right? So what is the answer? That person. How is Om related to the man? Om is the brother of that man, right? Pretty simple. Om is the brother of that man. So that was a simple question of chain relations. आगे बढ़ते हैं. Question number 4. Pointing to a man, a lady says that his father is the third son of her grandmother. How is that lady related to that man? Okay, easy to moderate level question, but I'm sure most of you will be able to get it. I'm going to give you about 2.5 minutes, not more than that. So pause the video for 2.5 minutes. Resume when you're done. Okay, so I hope by now you all have solved it and you must have solved it correctly. Let us quickly solve it together. Pointing to a man, a lady says that, so please understand, a lady is the subject of this question. A lady says that his father is the third son of her grandmother. First of all, there is a lady. Okay, and lady hai to let me just say capital, yes. So there is a lady, okay. Now, her grandmother, third son of her grandmother. So lady की grandmother को लाना पड़ेगा बीच में. So let's say this is the grandmother. Grandma, okay. So lady's grandmother, okay. Now this person, a lady says his father is the third son of her grandmother. So basically the grandmother has 3 sons. ये समझ में आ गया. Let's say son 1, then son 2, son 3. Okay, the grandmother has 3 sons. So son 1, son 2, son 3. Okay, now lady says that his father is the third. So lady जिस किसी man को बोल रही है ना, वो man इनमें से किसी एक का बेटा है. So it's possible that, let's say lady is the father, lady का father है son 1. Okay, so it is possible that this man is the son of this person. He can be a son of this person. He can be a son of this person. Okay, are you able to understand? That man can be son of this person, or this person. अगर वो मैन इसका ही सन हुआ तो वो क्या हो जाएगा? लेडी का ब्रदर. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. बट अगर सन इसका हुआ तो ये लेडी का क्या होगा? वो देखो, पापा के भाई का बेटा, दैट इज नथिंग बट कजिन. दैट्स द सेकंड केस. सो वी गॉट 2 आंसर. सो क्वेश्चन इज, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन? अगर ये भाई हुआ तो ये बहन होगी. सो सिस्टर भी सही है. और अगर ये दूसरे वाले बेटे का बेटा होगा तो वो कजिन होगा. तो कजिन भी सही है. इसका मतलब आंसर इज ऑप्शन डी. थोड़ा सा ट्रिकी था. I would just tell you that. It's not too difficult. It's just easy to moderate. Nothing difficult. You know? That was question 4. Let's move on. Question number 5, again from chain relations. Pointing to a boy, a lady says that his mother is the only sister of her mother. How is the boy related to that lady? If you look at the options, nephew, uncle, cousin, brother. These are the options. Okay. So I'm going to give you about 2 minutes, and this is again easy to moderate, inclined towards easy. So don't worry about it. It's not difficult.
Just solve it in 2 minutes. Pause the video, resume after 2 minutes. Alright, so I hope by now you're done. Let us have a look at the question. Pointing to a boy, a lady says, so please understand, lady says and she's pointing towards a boy. His mother is the only sister of her mother. Okay, let us start from the last part. Only sister of her mother. मदर की ओनली सिस्टर को हम क्या बोलते हैं? आंट या फिर मासी. मदर की सिस्टर इज मासी, राइट? ओके. His mother is the mother, is the aunt. His mother is the aunt. जिसकी मम्मी हमारी मौसी होती है वो कौन होता है? हमारा कजिन होता है. सो बेसिकली लेडी इज हियर. ये है लेडी की मॉम, ये है मॉम की ओनली सिस्टर, और वो बॉय इनका सन है. सो नाउ जस्ट थिंक, लेडी एंड ये सन कैसे हुए? दे आर बेसिकली कजिन्स. तो आंसर क्या आएगा? कजिन. हाँ, ब्रदर है बट कजिन ब्रदर है, राइट? ब्रदर है लेकिन कजिन ब्रदर है. सो इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? सिंपल. प्लीज नोट दैट जैसे जैसे आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो वैसे वैसे आपका कंफर्ट ज्यादा बढ़ना चाहिए. तो यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर फास्टर ना. लेट्स से पहले क्वेश्चन में आपको 3-4 मिनट लगते थे, तो अब आपको शायद 2-3 मिनट ही लगने चाहिए या फिर उससे भी कम, राइट? So that's the idea. That was question 5. Let us move on. Question number 6. Once again from chain relations. Sita said, Mohan's father is the only son of my father. How is Sita related to Mohan? Very easy question. I'm going to give you about 2 minutes. Pause the video. Solve it on your own and resume. Take 2 minutes. Alright, so I hope by now you are done. Sita said, Mohan's father is the only son of my father. देखिए, only son of my father. And think from Sita's point of view, okay? Sita is the subject. Think from Sita's point of view. Only son of my father. Sita के पिताजी का only बेटा कौन हुआ? Sita's brother. So इसको कैंसिल करके मैं लिख सकता हूँ Sita का brother. Okay. Mohan's father is Sita's brother. Now think. मोहन के पिताजी, let's say ये है मोहन, ये है मोहन के पापा. मोहन के पापा सीता के कौन है? सो मोहन्स फादर इज सीता's ब्रदर. इसका मतलब ये इंसान सीता का ब्रदर है. सीता इज हियर. कैपिटल. So now you can easily check the relationship. Sita is the aunt of Mohan. Mohan is the nephew of Sita. So what is the question? How is Sita related to Mohan? How is Sita related to Mohan? So Sita is the aunt. Okay? Is that clear? Yes? With